Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So far we have discussed many things about calculus, about vectors. Vectors has not completed yet, but we have talked about it, and also we have talked about units and measurements and etc. all those things in physics class 11th. So today what we are doing is today we are deriving equations of motion by calculus method. There are four equations of motion. You are like there were three, yeah, but no, there were four. One extra equation you have to study in class 11th is also in the syllabus. So that can be also derived by the calculus method. So we can now understand the calculus method as we have discussed many topics on calculus. Yes, we have done integration, we have done differentiation, their formula, their graphical meaning, their theoretical meaning, and etc. all those things. So today we are deriving the equations of motion with the help of the calculus that we have studied so far. And this is, in my opinion, this is the best method best method to revise calculus. By deriving equations of motion, you will be damn sure that my calculus is good enough. Good enough. Yes. So that's why we are deriving equations of motion just after doing our calculus. And it's my humble request to you to do this derivation of equations of motion by calculus method so that your concepts should also be clear. So let's start the video and enjoy it. So, before deriving the equations of motion, let's brush up our concepts by knowing our basic kinematics formula. Yes, we have to know the basic kinematics formula so that we can derive the equations of motion in a easier method. So, you all know what is displacement. No, displacement is what is velocity. Velocity is ds by dt. Yes, now I will not explain what is ds, what is dt. This is differential coefficient. Yes, you have studied differentiation many times, so I will not repeat it. V equals to ds upon में dt. ds is what? Displacement. dt is what? Time. So V is equals to ds upon dt in differential notation. In differential notations. Yes. Second is our acceleration. Acceleration is what? dv by dt. What is dv? Change in velocity. Yes, dv is change in velocity upon change in time. Very small change in velocity is dv. Yes, you all know this. Next, there is another formula for acceleration. There is another formula for acceleration which is very important to know. What is that? That is v dv upon ds. This is another formula for acceleration which is very important, because here acceleration does not depend on time. Rather it depends on what? It depends on the change in position. Yes, it depends on the change in position, not on the change of time. So when you are given acceleration as a function of distance, you can use this formula, and we use this formula for deriving our equation. How this come, I will let you know later, but देयर इट इज़. ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूला. दैट्स क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर. एंड नाउ वी विल go into the derivation. Before derivation, I will let you know the equations of motion. There are four equations of motion. Please remember it. V equals to u plus at. This is the first equation of motion. Second one is s equals to ut plus half at
square. This is the second equation of motion. Third is v square is equals to u square plus 2as. This is the third equation. You can also write v square minus u square equals to 2s. That's not matter. So this is the third equation. Fourth is, this is very important because till class 9th you will not know this, but in class 11th you have to remember this also. This is displacement in nth second. What is that? Displacement at nth second. Displacement at nth second. What is it? U plus a by 2 2n minus 1, where n is time, a is acceleration, u is initial velocity. And what is snth? What is snth? This is not displacement. This is not displacement. Why? You can check it by dimensional analysis. This is the correct question. So dimensions should also be correct on RHS and LHS. On LHS you can see this is LT minus 1, this is LT minus 2 into T. So this become LT minus 1 plus LT minus 1. Wow. So this means S and F is not a distance or displacement or any unit of length. Rather it's a unit of what? It's a unit of distance. Sorry, it's a unit of speed or velocity. Got it? But in units we are not writing meter per second. In units we write meters. Okay, why we would understand it later, not in this video, because we are not considering the deep into it. We are only deriving these equations. So later on we will understand why meter per second is not used as this unit, as this is speed, but why we use meters. We will understand this, we will know this later. No at this time. Okay? So kindly note these equations down, and now we will move further to derive these equations one by one with the calculus method. So note it down. So now let's start deriving the equations. First equation is v equals to u plus at. We will derive this equation. So what we can do? We can do v equals to ds upon dt, or a equals to dv by dt, or a equals to v dv by ds. What we should do? We should do not v equals to ds by dt. We should not do v equals to ds by dt. Rather, we should do a equals to dv upon dt. Why? The question becomes why. Should we mug up it? कि हमें तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप में रट्टा मार लेना है कि इसका क्या होगा, v इक्वल्स टू सॉरी a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, उसका फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा जो है हम कर देंगे. नो, you should not mug up this. Why? Because mugging up things is not that much clear. ठीक है? So हमें इधर सोचना है. क्या सोचेंगे हम अपना दिमाग लगाएंगे. क्या दिमाग लगाएंगे? हमें ये करना है कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप होगा, मतलब मैंने 3 इक्वेशंस लिखी थी, जो कि b इक्वल्स टू वो वाली इक्वेशंस जो थी, वो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी थी. तो उनमें मैंने आपको बताया था कि एक है टाइम डिपेंडेंट, एक है उनमें से डिस्टेंस पे डिपेंड भी कर रही है, और ऐसे ऐसी इक्वेशंस थी वो. तो हमें उनसे दिमाग लगा के ही इसको सॉल्व करना है. तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक दैट हियर एक्सेलरेशन इज देयर. यस, acceleration is there and time is there, not displacement. There is no term of displacement. So third equation is vanished. Third equation को हम use नहीं करेंगे, और even first वाली को भी use नहीं करेंगे. First वाली कौन सी थी? v equals to ds by dt. ds is there? No, there is no term of displacement. So the equation left is, yes, you are right, acceleration equals to dv by dt. This is the correct step we should use it. And people mug up it. No, please don't mug up it. It is clear that there is no displacement term, so we should use this, we must use this.
नो नीड टू मगिंग अप, ठीक है, मगिंग करनी ही नहीं है हमें, नहीं तो हम भूल जाते कि हाँ इसमें क्या करना था, सेकंड वाले में तो ये करना था, थर्ड में ये गए तो हम ऐसे रट्टा मारते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी, यस, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ये सब आपको लिखना है, मैंने लिखा है तो इसके आगे आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन डिफरेंशियल नोटेशन, फिर आप करोगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स एल एच एस एंड आर एच एस, ये सब आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट हम करेंगे, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे। अब हमें लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, लिमिट्स डिफाइन करते हैं। देखिए वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वेलोसिटी इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट्स गोइंग फ्रॉम u to v, yes, u is the initial velocity, lower limit, v is the final velocity, upper limit, and time is going from, let's say 0 to t, हम t इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहे हैं, t इक्वल्स टू t तक जाएंगे हम, ठीक है, लिमिट्स डिफाइंड, यस, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू बट, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इधर एक चीज़ करेंगे, क्या, एक्सेलरेशन को बाहर लेंगे, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, these are equations of uniformly accelerated motion, this is the equation of uniformly accelerated motion, ठीक है, this is the equation of uniformly accelerated motion, so acceleration is constant and constant terms becomes gets out of the integration sign, so this becomes this 0 to t dt, yes, this become this, so now open the limits, put the limits, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होता है, यस, dv का इंटीग्रेशन v ही होगा, लिमिट्स जाएंगी आपकी u से v तक, एक्सेलरेशन जाएगा, यहाँ पर भी t रहेगा 0 से t तक, इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू सी, वेरी सिंपल। नाउ ओपन द लिमिट्स, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v डालिए माइनस u, ठीक है, फिर यहाँ पे t की जगह t माइनस t की जगह 0, सो दिस बिकम्स v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, और a इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो आ गया आपका आंसर, दैट्स द आंसर, कुछ करना ही नहीं है, कुछ किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये स्टेप आपको याद रखना है, उसके आपको थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिमिट्स पुट करनी है, आपका आंसर ही है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो लेट्स प्रोसीड टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो नाउ लेट्स डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ व्हाट शुड वी डू, फिर से हम वही आ गए कि तीन फार्मूला थे हमारे पास, हम उन तीन में से हम कौन सा लगाए, ए बी इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, बी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, और ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस, सो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, सो यहाँ पे हमें अब सोचना पड़ेगा, फिर से क्या सोचेंगे हम, देखिए v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, क्या हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे t का टर्म भी है, यस, यहाँ पे s का टर्म भी है, यस, वेलोसिटी भी है, यस, अगर हम लगाएंगे a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी तो उससे काम नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, हमें ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन वो तो थर्ड इक्वेशन भी होती है, a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस, यस, वो भी होती है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते थे, बट एक दिक्कत है उसमें, वो लॉन्ग मेथड चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टी नहीं है, वहाँ पे टी नहीं है, हमें टी एस और बी सबको जोड़ना है, ठीक है, टी एस और बी सबको जोड़ना है, वो हमें सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल, देखो थर्ड इक्वेशन से भी हो जाएगा ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस से, लेकिन अगर हमें सिंपलेस्ट करना है तो हमें ये वाली इक्वेशन ले लेनी चाहिए विथ नो डाउट, ठीक है, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन में डी टी, ठीक है, एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, उसकी तो टेंशन है ही नहीं, और कहाँ से आएगा अभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से वही चीज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v डी टी इज इक्वल्स टू डी एस, नाउ पुट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन पुट कर दीजिए,
अब देखिए, अब टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से टी तक लिमिट्स। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से एस तक, ठीक है, 0 से टी, 0 से एस। नाउ नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट कि वी को हम क्या लें। ट्रिकी पार्ट तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें जो क्या क्लाइमैक्स जो कह सकते हैं ना, क्लाइमैक्स पार्ट अब आया। वी को हम क्या लें। Go back to first equation of motion. What is V? V equals to U plus AT. That's all. Put this. So we get integration limits to the 0 to 2. So 0 to t. ठीक है, तो U equals to A plus T into dt. This becomes integration ds. Yes, it's very simple. Now अब हम करेंगे इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को हम तोड़ेंगे। प्लस आ गया, इंटीग्रेशन टूट सकता है, मैंने पढ़ाया था आपको, इंटीग्रेशन टूट सकता है। हम क्या करेंगे, 0 to t u dt प्लस 0 to t at dt, ठीक है, तोड़ दिया, u को अलग कर दिया, प्लस था यहाँ पे प्लस था, at dt को अलग कर दिया। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर एंड दिस बिकम्स नथिंग बट s, ठीक है, इसको हम s मान लेते हैं, ठीक है, क्या ये ऐसा। कुछ बुक्स में, इन सम बुक्स देर इज s माइनस एस नॉट, देयर दे टेक नॉट ज़ीरो, ठीक है, उधर वहाँ ये ज़ीरो नहीं लेते हैं, उनकी मर्जी, वो पहले से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट रखते हैं एस नॉट, इसलिए उनमें एस माइनस एस नॉट भी आता है। हमने ज़ीरो रखा है तो एस माइनस ज़ीरो आएगा, ठीक है, इसमें क्या था, एस माइनस ज़ीरो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में, जब खासकर एनसीईआरटी में भी एस माइनस एस नॉट है, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में करा है, इसलिए आपको सिर्फ एस दिखेगा, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। यू डी टी, यू कांस्टेंट है, यस यू तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, तो यू बाहर आ जाएगा आपका, यू बाहर आ गया, और ये आ गया आपका 0 से टी डी टी, ठीक है। यू कांस्टेंट होता है, यू चेंज थोड़ी हो सकता है, एक बार आपने जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को चला दिया, वापस से थोड़ी आप फिर से कैसे करोगे, वो तो फिर सिस्टम फिर से आपको चलाना पड़ जाएगा ना। लेकिन अगर आपने एक बार चला दिया ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड से, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 5 सेकंड बाद वो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, इसको हमने 8 मीटर पर सेकंड से चलाया, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, तो यू बाहर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका ए बाहर आ जाएगा, ए कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन टी डी टी, ठीक है, टी डी टी रह जाएगा, टाइम अंदर जाएगा। नाउ एस, ठीक, अब देखिए वेरी सिंपल, डी टी का क्या होगा, टी होगा, टी टू द लिमिट्स 0 टू टी प्लस एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे टी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से वेरिएबल है। एक्स डी टी का, सॉरी एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, पावर प्लस करिए, पावर एक से प्लस करेंगे, पावर सॉरी एक्स लिख दिया में, पावर एक से प्लस करेंगे टी स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज द आंसर एंड 0 टू टी आर द लिमिट्स। सो एस, सो नाउ थोड़ा सा नीचे चला गया शायद से, एक स्टेप शायद आ जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं, नज़र आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यू टी, ठीक है, यू टी आ जाएगा यहाँ पे, 0 तो कैंसिल हो जाएगा वहाँ से, यू टी, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा आपका ए बाई तो टी इसको यहाँ लिखते टी स्क्वायर बाय 2, 0 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन तो बन गई ना, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ ही लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका S इक्वल्स टू यू टी, यहाँ से उठाया यू टी प्लस ए 2 को बाहर ले लीजिए, 1/2, ए तो था ही आपका ए टी स्क्वायर, दैट्स द इक्वेशन, दैट्स द डेरिवेशन, सो हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपकी होगी डिराइव। आई होप कि ये वाली इक्वेशन को भी आप अच्छी तरीके से समझ में है। तो इसमें आपका पहला स्टेप क्या था, ये वाली, ये चीज़ आपको रखनी है, याद नहीं रखनी है, इसको मगअप नहीं करना है, समझना है कि हाँ हमने यहाँ पे ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, और हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की टर्म लेकर आ सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वी कैन यूज़ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस, बट दैट्स लॉन्ग मेथड, सो वी कांट यूज़ इट, ठीक है। तो वो वाली हम इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली सिंपल थी हमने यूज़ करनी। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. So now let's derive the third equation of motion, which is what,
v square minus u square equals to 2s. So what kind of first step we use here? We can use now a equals to v dv upon में ds. Why we use it? Why we use this equation now? Because acceleration is there, displacement is there, velocity is there, no time. This is a time independent equation, so we don't need time. ठीक है, हमें टाइम वेरिएबल नहीं चाहिए तो हम उसको नहीं लेकर आएंगे, हम इसको लेकर आएंगे. अब ये आया कहाँ से, ये वाली इक्वेशन आई कहाँ से? लेट्स फर्स्ट सी दैट. ठीक है, यहाँ ले लेते हैं इसको. देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी टी. वी ऑल नो दिस, डी वी अपॉन में डी टी. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय डी एस. ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किससे? डी एस से. डी एस अपॉन डी एस. what will get? dv ds upon dt. क्या होता है ये? ds upon dt. दिस इज v एंड dv upon ds. हो गया, बस सिंपल सी चीज़ है, कुछ करना ही नहीं. हमने क्या करा, बस उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ds. ठीक है, ds बाई डी टी वी होता है, हमें पता है. बाकी उसका वो रह गया dv बाई ds. ठीक है, बाकी तो वैसे का वैसे ही है. सो दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन वी विल गेट. ठीक है, बस यहाँ अब आप यहाँ से सीधा शुरू कर सकते हैं. आपको ये लिखने की नीड नहीं है, सीधा यहीं से शुरू कर सकते हैं. नाउ फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. a ds इज इक्वल टू v dv. नाउ पुट इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट. देखिए जो ds लिमिट्स कैसे पुट करते हैं ये ध्यान से देखिए. जो d के बाद होता है ना, मतलब जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है, सबसे छोटी वाली टर्म होती है जिस पे लिमिट लगी होती है. बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल दी मैंने, लेकिन जो मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है. इसको हमने डेल्टा, मतलब इसको हमने बहुत छोटा नहीं करा एक्सेलरेशन को, हमने डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा करा. तो उसी पे हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे, क्योंकि उसी को तो हम ऐड करेंगे ना बार बार. ये तो हमारी क्या होगी? लेंथ होगी. ये हमारी छोटी वाली ब्रेड्थ होगी, तो इसी को तो हम बार बार ऐड करेंगे. If you don't understand this, please watch the video of integration and its graphical meaning so that you can understand this. ठीक है, तो इसलिए हम ds पर ही लिमिट लगाएंगे, हम एक्सेलरेशन की लिमिट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट इन डिफरेंशियल नोटेशंस. ठीक है, 0 to s और v क्या होगा? u to v. यस, u to v जाएगा बिल्कुल. नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बार 0 to s ds is equals to now v dv क्या होता है? चलो अभी इसको v dv रहने देते हैं, मैंने अब डाल दिया उस टाइम, कोई बात नहीं. अब देखिए यहाँ पे ds था, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा. ठीक है ना, ds का इंटीग्रेशन s, और लिमिट्स आपकी s और 0 थी तो वो s का s ही रहेगा. ठीक है, तो as हो जाएगा यहाँ पे. देन v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v dv का इंटीग्रेशन इज v स्क्वायर अपॉन में 2. लिमिट्स लग गई आपकी u टू v. ए एस इक्वल्स टू v की जगह v डालिए, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2. समझ पा रहे हैं ना ये कैसे कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल समझना चाहिए आपको. ए एस इक्वल्स टू v स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2. 2 गोज टू दैट साइड, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 2as. दैट्स द इक्वेशन. बस हो गया. So what you should understand in this, first of all remember this. ठीक है, रिमेंबर मतलब मगिंग वाला रिमेंबर नहीं, समझ के रिमेंबर. ठीक है, तो अभी a इक्वल्स टू v dv बाई डी एस. नाउ बाय सॉल्विंग दिस, देखिए आपकी जो है ना, जो फिज़िक्स है वो यहाँ ख़त्म हो जाती है. हर जगह बस यहीं ख़त्म हो जाती है, इसके आगे फिज़िक्स है ही नहीं. दिस इज़ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स. दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स. तो आपको मैथमेटिक्स तो ये करनी ही पड़ेगी, उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही सच्चाई है. तो
लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर देखा जाए, बिल्कुल सिंपल है। वी डी वी का v²/2 होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। लिमिट्स आपको जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला होता है उसके ऊपर आपको लिमिट्स लगानी होती है। सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम निकालिए, 2 उधर ये हो गया बस। इसको 2-4 बारी प्रैक्टिस करिए, एक बार से कुछ नहीं होने वाला। 2-4 बारी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू रिवाइज और टू प्रैक्टिस कैलकुलस अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ये 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आप एक बार ही में डिराइव कर लेते हैं ना, मतलब आपका कैलकुलस पूरी तरीके से क्लियर है। पूरी तरीके से क्लियर है, पूरी तरीके मतलब वो मैथमेटिक्स लेवल का नहीं, बट फिजिक्स लेवल, क्लास 11 फिजिक्स लेवल का क्लियर है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको ये 3-4 बारी आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। Now let's see this equation. This is an equation that you are studying only in class 11. You have not studied this in class 9, and this is थोड़ा सा complicated. This is a equation of much complications that should be clear जब आप इसको सॉल्व करोगे। थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लिकेशन है, बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। बट आई हैव मेड वन वीडियो ऑन डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड, इट्स derivation, yes, it's derivation, but not by calculus method, by simple mathematics. Now we will do it by calculus method. This is थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है ये, सो बी पेशेंट। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, सबको इसी में दिक्कत होती है कि व्हाट इज़ यार ये एस nth क्या है। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि ये वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, ये उस पर नहीं जा रहा हूँ। एस nth निकालते कैसे। सो इफ़ यू हैव स्टडीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, you should know what is nth, what is n, what is an nth term, what is an n terms. Yes, if you know that much, that what nth and n has two different meanings, you would easily understand this. Let's see. देखिए वो क्या रहा है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। सो मानते हैं कि ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा ट्रैक है, जिसमें कितने सेकेंड्स में डिवाइडेड है ये डिवाइडेड है आपका लेट्स से n सेकेंड्स, ठीक है, n सेकेंड्स, ठीक। वेरिएबल में ले रहा हूँ मैं क्योंकि वेरिएबल में समझाना है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरी वीडियो डली हुई है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे इसको मैंने और अच्छे तरीके से स्केल की मदद से भी मैंने इसको समझाया है, तो स्केल, ठीक है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक। इसको मान लीजिए हमने n सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया, सो दिस इज द n सेकेंड, ठीक है, दिस इज द n सेकेंड, दिस इज मान लीजिए द 0, ठीक है, दिस इज द 0, दिस इज 1 2 3 एंड गोज टू n सेकेंड, ठीक है, n सेकेंड तक। और ये जो होगा इसके एक पीछे वाला, इसको हम क्या कहेंगे, n-1 सेकेंड। यस, मान लीजिए ये 10 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेकेंड्स था, यहाँ तक ये 9 सेकेंड्स था, तो ये 9 सेकेंड्स कैसे निकला आपका, 10-1 लिखना ना, व्हाट इज 9, 10-1 इज 9 ना, सो दिस इज द n-1 सेकेंड। So what we have to find is the nth displacement at nth second. There is a difference between nth second and n seconds. N seconds means the total path. The total path still n seconds. Nth second means only that part. What is that? This is the nth second वाला part. This is the nth second वाला part, ठीक है। इस पार्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये हमें इक्वेशन देती है, और वही चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये तो टाइम की बात थी, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी पड़ेगी हमको। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से लेकर n सेकेंड्स तक, उसको हम Sn मान सकते हैं। यस, उसको हम Sn मान सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो n-1 तक हुआ
उसको हम n-1 मान सकते हैं। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, जो n तक हुआ उसको हम Sn मानेंगे, जो n-1 तक हुआ उसको S-1 मानेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरे पाथ को 1 सेकेंड पहले तक के डिस्प्लेसमेंट से हम माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या? ये वाला बचेगा ना। सिंपल है, 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 वाला ही बचेगा ना। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें से 9 सेकेंड्स तक जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उनको माइनस कर देंगे तो 10th सेकेंड, दिस इज द 10th सेकेंड, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मिल जाएगी। एंड व्हाट इज दैट? डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड। नाउ गॉट इट? यस। तो अब इसको हम करेंगे डिराइव। ठीक है, इसकी हमने लिमिट्स भी डिफाइन कर दी है, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा हो। ठीक है, लिमिट्स हमने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। देखिए, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, इसको वेलोसिटी मत समझिए, डिराइव करते समय बिल्कुल मत समझिए, वो बात की बात देखी जाएगी कि इसको क्या करना है। इसको अभी डिस्प्लेसमेंट समझिए। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। सो व्हाट इक्वेशन डज वी हैव टू यूज़? हमें एक ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा हो और टाइम भी आ रहा हो। ठीक है, तो वो कैसी इक्वेशन है? वो आपकी सिंपल सी है, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से हम बड़े आसानी से एक्सेलरेशन को भी निकाल देंगे, इसमें कोई बड़ी वाली आपकी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई वी डी टी इक्वल्स टू डी एस। ठीक है, वी डी टी इक्वल्स टू डी एस आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वी डी टी इक्वल्स टू डी एस। सो वी की जगह हम पुट कर सकते हैं यू प्लस ए टी टाइम्स डी टी इज इक्वल टू डी एस। इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से 0 से लेकर s तक जाएगा, यहाँ से 0 से लेकर t, यहाँ से नो 0 से s तक नहीं जाएगा, क्यों जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगी आपकी? Sn माइनस 1 से Sn तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जाएगा, तभी तो आपका Sn माइनस 1 आएगा, तभी तो आपका Snth आएगा ना। ऐसे इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट्स जो मैंने डिफाइन करी थी n-1 से n तक आपको जाना पड़ेगा। सो आई विल गिव दिस टू यू होमवर्क। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना, मैंने यहाँ तक कर दिया है सॉल्व, इसके आगे बस आपको मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डिराइव दिस। ठीक है, यू हैव टू डिराइव दिस। ठीक है, अब इसके आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है, लिमिट्स मैंने लगा दी है। लिमिट्स कैसे लगाई हैं इससे समझ लीजिए। Sn-1 से हम Sn तक जा रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए? Snth मिल जाए, क्योंकि Sn-1 से तो मिलेगा। ऐसे ही यहाँ भी हमें फिर टाइम की हमें लिमिट्स उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लगानी पड़ेगी। दैट्स क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये सॉल्व करना है होमवर्क में आपका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।